Hi everyone, good morning. You are watching on the screen the remaining portion we are going to continue today. The name of lesson, the necklace. Okay, so before, as I told you in my last period, we have discussed about the necklace and the character Mathilde, who is very innocent lady, but she was disappointed, she was dissatisfied about her life. Nature has given us a she was very beautiful as well as she was very charming lady, even though she was very dissatisfied about her life. Why? Because she just going to considered herself that I am not belongs to wealthy family, my family is very poor. I am belongs to very poor family. Because of bad fate of my luck, because of my bad fate, I born in the clerk family. After 20 years, she get married with the clerk. Means he was a very inferior clerk in the Ministry of Education. She was dissatisfied, she was disappointed, she dressed up plainly, as well as she was not satisfied. She cannot be define the definition of satisfaction. आप सभी को पता है कि satisfaction की कोई definition नहीं होती या success की भी कोई definition नहीं होती है ना. हम किसे सेटिस्फाइड पर्सन बोल सकते हैं, हम किसे सेटिस्फाइड या सक्सेसफुल पर्सन बोल सकते हैं, है ना. अगर एक बेगर है ना, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एक बेगर सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे में अगर वो 100 रुपये कमा सकता है या कमा लेता है तो वो सक्सेसफुल हो गया उसके लाइफ में. अगर हम अंबानी की बात करते हैं, वो मिलीनियर बिलीनियर्स है, तो सुबह से लेके शाम तक मतलब 812 घंटे तक अगर उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अर्निंग है तो ही इज सक्सेसफुल इन हिज ओन सेक्टर एंड बेगर इज सक्सेसफुल इन हिज ओन सेक्टर. सो सक्सेस डेफिनेशन कैन बी वैरिड टू पर्सन, है ना. पर्सन टू पर्सन ये वैरिड है. तो इसी प्रकार का हमारा जो कैरेक्टर है मैथिल्डे नाम का, उसको पता ही नहीं कि सेटिस्फेक्शन क्या है. नेचर ने उसे बहुत ही बाय बर्थ शी वॉज वेरी चार्मिंग लेडी, बाय बर्थ शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, इवन दो शी वॉज डिससेटिस्फाइड अबाउट हर लाइफ. And that is why this narration is narrated by the we can learn all the things from this narration. So in my last period we have discussed she get married with the person who was inferior clerk in the Ministry of Education. After that he is just trying to convince her that come with me, we are going to celebrate a particular function where they were invited, but she denied that and she just said to her husband that I do not have particular dresses और आई डू नॉट हैव मतलब प्रेटी ड्रेसेस नहीं है, कॉस्टली ड्रेसेस नहीं है, आई डू नॉट हैव महंगी चीज़ें नहीं है, दैट इज़ वाई आई कैन नॉट कम विद यू. सो शी जस्ट आर्ग्यू विथ हर हस्बैंड. सो रिमेनिंग पोर्शन लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू explain here. You should be with your textbook as well as the relevant material for the learning purpose, isn't it? So शायद आपको ये सभी स्क्रीन दिख रही है. The same lesson we are going to continue the necklace, page number or the activity number 1.5. So the day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious through her dress, who ready. One evening her husband said to her, what is the matter? You have been acting strange these last 3 days. So the day of the party means he or she was invited to the party. There were a particular party. Okay, and her husband was invited with her wife and he said to her wife, we should go there or we have to attend the particular party which they were invited, है ना. उन दोनों को इनवाइट किया गया. तो उस पार्टी में जाने के लिए जैसे ही उन्होंने मतलब उसके हस्बैंड ने जो भी लिफाफा था उसके हाथ में वो अपने पत्नी के हाथ में देते ही उस पत्नी ने वो देखने के बाद में वहाँ पे टेबल पे धड़ से फेंक दिया या रख दिया और वो बोलने लगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड दिस पार्टी बिकॉज आई डू नॉट हैव द wealthy or I do not have the costly dresses to wear for the party. I do not have dresses for wearing to the party. पार्टी के लिए मेरे पास में तो अच्छे ड्रेसेस ही नहीं है. That is why I cannot attend with you in the party.
So the day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad. अभी पार्टी का दिन आ चुका है ना, क्योंकि बिफोर वन डे हर हस्बैंड सेड हर that we should attend tomorrow party, but before day she just said that I do not have dresses, so I cannot attend a party. But the day of the party, मतलब पार्टी के दिन ड्रू नियर, किसके पास में, उस अपने वाइफ के पास में वो गया. एंड मैडम लॉयजल मतलब वो मैथेल्डे, उसका जो नाम था मैडम लॉयजल, सरनेम उनका. सिम सैड, वो दुखी दिखी, बहुत ही एंशियस दिखी, दुखी दिखी. तो उसका रीज़न आप लोगों को पहले से ही पता है कि उससे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई, अभी शादी भी हुई तो मेरे गरीब से ही हुई. जो भी उसका सपना था, हमने पिछले पीरियड में सपने के बारे में सोचा कि मेरा एक बड़ा घर हो, बड़ी कार हो, है ना, इस तरह के रूम्स हो, बड़े बड़े सभी चीज़ें बड़ी बड़ी. लेकिन सिर्फ वो सोचती थी, वो सपना पूरा करने के, और वो बड़ी नहीं थी. तो इस तरह से उसके मन में जो भी सपना था, इसीलिए वो दुखी थी, खुद को ही उसने दुखी किया. रेस्टलेस मतलब अस्वस्थ. बिफोर गोइंग टू द पार्टी शी बिकम वेरी एंशियस, शी बिकम वेरी सैड, रेस्टलेस, एंशियस थ्रू हर ड्रेस वॉज रेडी, है ना. क्यों, वाई शी वॉज एंशियस, वाई शी वॉज रेस्टलेस, बिकॉज शी डजंट हैव कॉस्टली ड्रेसेस. उसके पास में क्या नहीं था, महंगे ड्रेसेस नहीं थे. शी डजंट हैव कॉस्टली ड्रेसेस, सो दैट शी वॉज वेरी सैड, शी वॉज वेरी रेस्टलेस, एंशियस. ओके. One evening her husband said to her, what is the matter? So in that evening her husband said to the Mathilde that why are you worried, why are you restless, why are you anxious? The question has been asked by the husband of that Mathilde that what is the matter, tell me the reason, why are you nervous, है ना, आप नर्वस क्यों हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, मुझे बताओ. तो यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days. जब से मैंने पार्टी की बात की है, या जब से मैंने बोला है कि मेरे ऑफिस के जो भी मेरे बॉस है उनके घर पार्टी है, तब से मैं देख रहा हूँ कि यू आर जस्ट बिहेविंग एज लाइक अ स्ट्रेंज की तरह आप मेरे से बिहेव कर रही हो. गए 3 दिन से मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कि यू हैव बीन एक्टिंग अ स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days. जो भी लास्ट 3 days है, मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ कि यू आर एक्टिंग अ स्ट्रेंज, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर है ये मुझे स्ट्रेंज लग रहा है, बहुत ही विचित्र सी आपकी बिहेवियर मुझे लग रही है. शी रिप्लाइड, अभी उस पर उसने अपने पति को बोला. शी रिप्लाइड दैट आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर. क्यों अपसेट ना हूँ मैं, because I do not have a ornament, I do not have a jewelry, I do not have a single stone to wear. एक छोटा सा स्टोन भी मेरे पास नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास में अच्छे ड्रेस नहीं है, मेरे पास में अच्छी ज्वेलरी नहीं है. मैं क्यों ना रेस्टलेस हूँ, मैं क्यों ना एंशियस रहूँ, मैं क्यों ना सैड रहूँ, मैं क्यों ना अनहैप्पी रहूँ. वाई, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ कॉस्टली ड्रेसेस एज वेल एज आई डू नॉट हैव ऑर्नामेंट, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर. एक छोटा सा जो भी स्टोन होता है वो तक मेरे पास पहनने के लिए नहीं है. दैट इज़ वाई आई एम वेरी एंशियस. आई वुड रैदर नॉट गो टू द पार्टी, इसीलिए मैं पार्टी में जाना नहीं चाहती. आई डोंट वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी. वाई, बिकॉज आई डू नॉट हैव कॉस्टली ड्रेसेस एज वेल एज आई डू नॉट हैव द कॉस्टली ऑर्नामेंट्स ऑन माई बॉडी. दैट इज़ वाई I do not want to attend, means I would rather not go to the party. Okay, you could wear flowers, he said. तो उसने बोला कि okay, if you do not have costly ornament, so on the place of that ornament you can wear a flower. अभी फूलों वाली जो भी बालों पे लगाते हैं या उस तरह के जो भी हार होते हैं, so you can wear the flowers. हर हस्बैंड सेड टू मैथिल्डे दैट यू कुड वियर अ फ्लावर. तो उसकी जगह पर आप क्या पहन सकते हो, फ्लावर्स भी पहन सकते हो. ही सेड, मीन्स द हस्बैंड ऑफ मैथिल्डे सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर. तो इस साल के
इस काल का जो टाइम है, इस साल की जो टाइम है, उसमें ये जो फैशन है ये बहुत ही क्या होगी, इट विल बी मोर फैशनेबल, इट विल बी मोर गुड और मोर बेटर दैन द ऑर्नामेंट. दिस फैशन विल बी मोर बेटर दैन द ऑर्नामेंट. ये अगर तुम फूलों वाला हार अगर पहनोगी तो जो भी फैशन है उसके ऊपर की फैशन ये हो जाएगी, ऑर्नामेंट से ये बेटर आपको दिखने लगेगा. तो इस तरह का सजेशन मैथिल्डे के पति ने मैथिल्डे को दिया. सो चलो आगे बढ़ते हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन उसने वो कन्विंस्ड हुई क्या, नहीं हुई. शी डिडंट कन्विंस्ड, शी डिडंट और शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. तो उसके पति ने जो भी बोला था कि तुम क्या पहन सकते हो, यू कैन वेयर अ फ्लावर और दैट विल बी मोर फैशनेबल ऑन योर बॉडी रैदर दैन ऑर्नामेंट. बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन इस बात को लेके वो कन्विंस्ड नहीं हुई. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर डिस्ट्रेस. Madam Forrester went to the minor wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." First, Mathilde saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried a jewelry in the mirror. She kept acting, "You have nothing else." Why? Yes, but I don't know what you like. So the next day, she went to her friend's house. मीन्स मैथिल्डे वेंट टू द फ्रेंड्स हाउस. तो उसके पति ने तो बोला कि यू कैन वेयर अ फ्लावर. सो शी जस्ट गेट अ रिग्रेट एंड अपसेट. शी बिकम अपसेट एंड शी वेंट टू द फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर. उससे उन्होंने बातें की. डिस्ट्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस इट मीन्स एंशियसली शी टोल्ड टू हर friend, isn't it? The next day she went to her friend's house and told her distress. Madame Forrester went to the mirror wardrobe. तो ये जो भी ऑर्नामेंट रखने की जगह होती है, मिरर वार्डरोब है ना, मिरर वार्डरोब दैट इज द प्लेस फॉर पुटिंग ऑर्नामेंट. तो उन्होंने जो भी उसका कपबोर्ड था जहाँ पे वो ऑर्नामेंट रखती थी, कौन, उसकी फ्रेंड. तो वहाँ से उन्होंने एक बॉक्स निकाला और बॉक्स निकाल के किसके आगे रख दिया. शी पुट दैट बॉक्स ऑन द इन फ्रंट ऑफ मैथिल्डे एंड टुक आउट अ लार्ज बॉक्स. तो उसमें से उन्होंने एक लार्ज सा बॉक्स निकाला. उसमें से जो भी कपबोर्ड था, कपबोर्ड से निकाल के उसने उसके सामने रख दिया. ब्राउट इट बैक, ओपन इट, उसके बाद में उसको खोल के दिया. एंड सेड टू मैडम लॉयजल, जो मैथिल्डे थी, उससे बोला, क्या बोला, चूज माई डियर. फर्स्ट मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स. तो उसने अपने दोस्त को बोला, मैथिल्डे को बोला कि यू कैन चूज वट एवर यू वांट टू वियर इन द पार्टी. पार्टी में जो भी आपको पहनना है, जो भी आपको ऑर्नामेंट ठीक लगे, वो ऑर्नामेंट इस बॉक्स से निकालो. निकालने के बाद में आप चूज़ करो. चूज़ करने के बाद में आप यू कैन वियर दैट ऑर्नामेंट. सो चूज़ माय डियर. फर्स्ट मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट. तो सबसे पहले मैथिल्डे ने उसमें क्या देखा, सम ब्रेसलेट शी हैज़ चोजन. आफ्टर दैट शी ओवर अ पियर नेकलेस, मोतियों वाला हार नेकलेस उसने निकाला. देन शी ट्राइड अ ज्वेलरी इन द मिरर. और आपने देखा ही होगा, महिलाएं जो भी नेकलेस पहनते हैं तो उसके बाद में मिरर के सामने जाके उन्होंने देखा. शी ट्राइड अ ज्वेलरी मीन्स वन बाय वन शी wore a different kind of jewelry on her neck, different kind of necklaces she wore on her neck, and she looked into the mirror, her own reflection. She tried a jewelry in the mirror. mirror में वो देखती गई एक के बाद एक नेकलेसेस उसने पहन के देखे. शी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स. और उसके बाद मतलब 10-15 नेकलेस पहनने के बाद में उसको एक भी वहाँ का नेकलेस पसंद नहीं आया. और उसके बाद मैथिल्डे said to her friend that you do not have anything else. इसके अलावा आपके पास में और नहीं है. तो वो बोली yes but I don't know what you like. है, इसके अलावा भी मेरे पास में बहुत सारे नेकलेसेस है, बट आई डोंट नो व्हाट डू यू लाइक. लेकिन मुझे पता नहीं आपको किस तरह के नेकलेस चाहिए. तो इस तरह का ये जो लेसन है यहाँ पे हमने पढ़ा नहीं किया, हमने
पढ़ने की कोशिश की। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। उसके बाद में वो पार्टी में वो पहन के जाती है नेकलेस, है ना। उसके बाद में वो जो है जिसका नेकलेस था वो विदाउट नेकलेस शी जस्ट क्या प्रीटी दिखती थी विदाउट नेकलेस, जिसके पास में सारी तरह की प्रॉपर्टी थी, बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी वो विदाउट ऑर्नामेंट शी जस्ट अटेंडेड द पार्टी एंड शी जस्ट इंजॉइंग लॉट। बट द लेडी who doesn't have any wealthy background but she wore a lots ornament on her body and she just she cannot be become comfortable। जब भी हम बहुत ही कॉस्टली चीज़ें पहनते हैं तो हम खुद में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, है ना। अगर हमारे कपड़े बहुत ही कड़क हो तो हम सिर्फ कपड़ों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर कपड़े पहनते हैं तो हम इंजॉय कर सकते हैं। तो इंजॉयमेंट इज़ नेसेसरी रादर दैन द ऑल मटेरियलिस्टिक लाइफ। सो दिस मैसेज वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस पैसेज, वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस लेसन। ओके, तो इतना जो पोर्शन है, छोटा सा एक पैराग्राफ बचा है, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे। स्टिल देन थैंक यू। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेवेंट, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। स्टिल देन थैंक यू वेरी मच।